और अब इसके बाद अद्वैत शारदा श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक सम्मान ग्रहण करेंगे स्वामी राघवेंद्र भट्ट और श्री वी के शर्मा। It is our privilege on this occasion of Advaita Utsav to felicitate Advaita Sharada, an excellent project at Sringeri Sharada Peetham to propagate the teachings of Acharya Shankara. The Sringeri Sharada Peetham has the distinction of having an unbroken chain of Acharyas right from the time Sri Adi Shankara established the first of the four Amnyaya Peethams at Sringeri more than 12 centuries ago to foster the sacred tradition of Vedas and Sanatana. Thus, blessed with an unbroken Guru Parampara, the Sringeri Sharada Peetham is a great place of traditional learning owing to the presence of the goddess Sharada and the erudition of the Acharyas of the Peetham. The Acharyas of the Peetham have been instrumental in bringing forth the commentaries on the Vedas and in further expanding the bhashyas of Sri Adi Shankara. In our time today, when the barriers of distance and boundaries are being broken and the world has evolved into a global village, the Peetham has widened its area of contribution to involve education, healthcare, and many social and charitable activities. The widened areas of the work of the Peetham continues to remain under the scope set by its founder, Sri Adi Shankara, for the sustenance of the essence of the Sanatana in Vedanta. Advaita Utsav 2019 extends sincerest felicitations to Advaita Sharada for successfully working towards the achievement of the goals of making our Shastric texts available for access via the internet and for creating a learning platform to introduce the Upanishadic philosophy of Advaita to beginners and early aspirants. अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मिशन उत्तराखंड और सम्मान ग्रहण करने के लिए हम बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं स्वामी शुद्धिदानंद जी को। कृपया मंच पर पधारें। करतल ध्वनि से आप सब मंच पर उनकी इस सामत का स्वागत करिए। माननीय कुलपति महोदय, जैसा कि निर्धारित है, शॉल, अंगवस्त्र, प्रशस्ति आदि शंकराचार्य का चित्र भेंट कर अद्वैत आश्रम जी प्रशस्ति वाचन और उसके बाद अभिनंदन। It is our privilege on this occasion of Advaita Utsav to felicitate Advaita Ashram, a branch of Ramakrishna Mutt at Mayavati in Uttarakhand, India. Founded in 1899 at the behest of Swami Vivekananda by his disciples Colonel James Henry Sevier and Charlotte Sevier, the ashram is dedicated to the study and practice of Advaita Vedanta. There are no images or idols on the premises of the ashram, not even of Ramakrishna, in keeping with the ideals of Vivekananda. The ashram is a major publication center of the Ramakrishna order of books in English and Hindi through its branch in Kolkata. Apart from books, the ashram also brings out the journal Prabuddha Bharata in English, which is being published since July 1896, making it the oldest running journal by Ramakrishna Mission. The journal is open to free online access on internet. For researchers and scholars, the ashram has good facilities, including a library with 14,115 books, 22 newspapers and periodicals. Some of the old manuscripts of the ashram have been microfilmed and have been preserved at Indira Gandhi National Center for Arts at Delhi. Advaita Utsav 2019 extends the sincerest felicitations to Advaita Ashram for continuously and relentlessly working on the expostulation and propagation of Swami Vivekananda's Advaita philosophy. स्वामी शुद्धिदानंद जी मंच पर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मिशन उत्तराखंड से अद्वैत उत्सव में शामिल होने के लिए हम सबके बीच उनका पुनः अभिवादन स्वागत।
और अब इसके बाद आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ सोमाश्रम उत्तरकाशी, प्रशस्ति वाचन और उसके बाद अलंकरण। It is our privilege on this occasion of Advaita Utsav to felicitate Adi Shankara Brahma Vidyapeeth at Somashram, Uttarkashi in Uttarakhand, India. Maintaining the Gurukul tradition since 1910, the Peeth has regular classes on Vedanta, Vyakarana, and Prakarana texts of Indian philosophy. The teaching at the Peeth is in the Kailasa tradition under the loving guidance of three acharyas and is committed to reviving and disseminating the timeless spiritual essence of the Sanatana. The disciples at the Peeth aim at the attainment of a Brahma Vidya, that is the knowledge of one's true self unfolded through the Vedantic scriptures. This knowledge of one's true self establishes the oneness of the individual with the cosmic being or the supreme consciousness. As an institution dedicated to the study of the profound scriptures in the traditional Indian way and to promote secular learning, the Vidyapeeth aims at preserving and propagating the knowledge of Brahma Vidya, which is the basis of India's spiritual and cultural heritage. Apart from spreading the teaching and the philosophy of Acharya Shankara, the Peeth is dedicated to the mission of trying to attain world peace, brotherhood, and religious harmony through spiritual knowledge. Advaita Utsav 2019 extends sincerest felicitations to Adi Shankara Brahma Vidyapeeth for successfully trying to combine the virtues of classical Indian knowledge contained in Vedanta with contemporary value systems. सम्मान ग्रहण कर रहे हैं आचार्य हरिद्वेदानंद जी, आदि शंकर ब्रह्म विद्यापीठ सोमाश्रम उत्तरकाशी की ओर से। और अब इसके बाद श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रशस्ति वाचन। Shri Shivraj Singh Ji, it has been an honor for us to have you here at this Advaita Utsav to witness and bless our efforts to re-energize the spirit of universal oneness, which is a unique and unparalleled contribution of Indian civilization to the humanity. Sir, you have been a beloved Chief Minister of the state of Madhya Pradesh for 3 consecutive terms. Besides being a loved statesman, you have contributed significantly towards the spread and dissemination of Acharya Shankar's humanistic message of universal oneness through his philosophy of Advaita. You have been the first Chief Minister of any Indian state to start the exemplary initiatives of Ekatmata Parv in every district and Ekatma Yatra in every Gram Panchayat of the state. The initiatives have been successful in making the people of the state aware of Acharya Shankar's philosophy and its significance. Apart from these unique initiatives, which exemplify your theory of Ekatmavad, your ideas of the formation of Acharya Shankar Sanskriti Ekatanyas, of the installation of a 108-feet multi-metal statue of Acharya Shankar on Omkar Parvat, of the establishment of Shankar Sangrahalaya, and Acharya Shankar International Advaita Vedanta Institute are on their way to realization. Sir, the Advaita Utsav extends the sincerest felicitations to you for your great service in spreading and popularizing Acharya Shankar's message of universal oneness. इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस रेखा तक जिसके आगे राह नहीं है। शिवराज सिंह चौहान सम्मान ग्रहण कर रहे हैं अद्वैत उत्सव के इन शुभारंभ क्षणों में अद्वैत सम्मान से उनका अलंकरण। और इसके बाद श्री वासुदेव कामत, शिल्पकार चित्रकार। संदर्भ आप सबको ज्ञात ही है कि आदि शंकराचार्य
कि अष्टधातु की प्रतिमा जो ओंकारेश्वर में प्रतिष्ठित की जानी है, और उस धातु की प्रतिमा का निर्माण वासुदेव कामत जी ने मध्य प्रदेश शासन के अनुरोध पर किया। उनका प्रशस्ति वाचन और उसके बाद उनका अलंकरण। Shri Vasudev Kamatji, it has been an honor for us to have you here at this Advaita Utsav to witness and bless our efforts to re-energize the spirit of universal oneness, which is a unique and unparalleled contribution of Indian civilization to the humanity. Sir, you are a gold medalist graduate from the J.J. School of Art, Mumbai, and your talent in drawing and painting has been universally recognized and awarded. Your art has won many acclaimed awards that include the Grand Prize by the Portrait Society of America, MS Golwalkar Guruji Gaurav Puraskar, Chandrakant Mandre Gaurav Puraskar, Bombay Art Society's Gold Medal, Usha Deshmukh Gold Medal, Ceylon International Award, and the award by San Diego Watercolor Society. In your on-the-spot landscape tours, you have covered a wide variety of landscapes, including the Andaman Islands, Char Dham Gomukh, Kathmandu, Leh and Ladakh in the Indian subcontinent, and Venice in Europe. Sir, the portraits and the landscapes drawn by you have been as much appreciated as your visions of the inner self in your paintings. The visions that you have portrayed range from the innocent curiosity of a child to the saintly wisdom of a profound thinker. Sir, your vision of Acharya Shankar's persona will soon materialize in the form of a 108-feet multi-metal statue of the great sage on Omkar Parvat at Omkareshwar. Sir, the Advaita Utsav 2019 extends sincerest felicitations to you for your remarkable contribution in capturing the essential spirit of universal oneness in your art. वासुदेव कामत जी हमारे इस पूरे प्रकल्प के महत्वपूर्ण सूत्रधार, जिन्होंने कैसा प्रतीक आदि शंकराचार्य का हम सबको सौंपा है, जिसके दर्शन, जिसके सानिध्य में रहकर हम अद्वैत वेदांत दर्शन को जन जन तक पहुंचाने में लगातार अपनी चेतना को समुन्नत किए हैं, बरकरार रखे हुए हैं। बहुत अभिनंदन। वासुदेव कामत जी इस वक्त जब सम्मानित हो रहे हैं, तब यह समीचीन होगा कि हम एक छोटा सा चित्र जो उन्होंने आदि शंकराचार्य पर स्वयं एक वृत्त चित्र जैसा ही तैयार किया है, हम सब उसका सामूहिक रूप से अवलोकन करें। हमारे ऑपरेटर्स जी, आप सबका ध्यान चाहेंगे। नमस्कार, मैं चित्रकार वासुदेव कामत दक्षिण कर्नाटक के कारकल इस छोटे से ग्राम में मेरा जन्म हुआ, परंतु 1 साल की उम्र से ही मुंबई महाराष्ट्र में मेरी शिक्षा पढ़ाई हुई और आगे चलकर यही मेरी कर्मस्थली रही। बचपन के 2.5 साल के आयु में अक्षय परिचय के पूर्व मैं घर के दीवारों पर चॉक से रेलगाड़ी तथा मोटार के चित्र रेखांकित करते देखकर मेरे माता पिता ने मुझे चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल की शिक्षा के पश्चात मैंने मुंबई के सर जजीकला महाविद्यालय में चित्रकला की जीडी आर्ट पदवी का प्रथम श्रेणी प्रथम क्रमांक से प्राप्त की। इसके उपरांत अब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनेक पुरस्कारों से मेरी कला सम्मानित हुई। पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, कंसेप्चुअल पेंटिंग्स और सब्जेक्टिव पेंटिंग्स, यह मेरी कला निर्मिति के 4 प्रमुख आयाम हैं। बचपन से घर में धार्मिक श्रद्धा और भक्ति का वातावरण था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कार, इन कारणों से मेरी कला निर्मिति ऐसे ही विषयों से प्रेरित रही। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध के जीवन प्रसंगों पर आधारित चित्रमालिका मैंने चित्रबद्ध की। इसी प्रकार अपने भारतवर्ष के महापुरुष और संतों के विचारों से प्रेरित विषय भी मेरे चित्रों में अभिव्यक्त हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का
आदि शंकराचार्य उपन्यास पुस्तिका जब पहली बार मैंने पढ़ी तो उनके व्यक्तिमत्व और अद्वैत मत से मैं बहुत प्रभावित हुआ। शंकराचार्य निर्मित चरपट पंजरे का स्तोत्र, नर्मदा स्तुति, मनीषा पंचक आदि स्तोत्र आज भी मैं बार बार पढ़ता हूँ। आदि शंकराचार्य ने 11 साल की उम्र में अपनी माता से संन्यास की अनुमति लेते हुए प्रसंग का चित्र मैंने बनाया है। अद्वैत मत का प्रचार करते हुए जब शंकराचार्य काशी में एक चांडाल सन्मुख खड़े रहते हैं, तब तत्वज्ञान और आचरण का सही संबंध का साक्षात्कार करते हैं, तब मनीषा पंचक का निर्माण होता है। बाल सन्यासी शंकर ने 11 साल की आयु में नर्मदा तीर पर ओंकारेश्वर स्थान पर गुरु कृपा से सन्यास की दीक्षा ली। उस उम्र की मेधावी संपन्न व्यक्तिमत्व का पूर्णाकृति व्यक्ति चित्र बनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मेरे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माता नास्ति पिता नास्ति, इस प्रकार का माया भवबंधन से मुक्ति की चेतना देने वाला विचार प्रत्यक्ष जीवन में उतारने की क्षमता मुझ में नहीं है, ये मैं जानता हूँ, परंतु अद्वैत विचारधारा वहाँ तक पहुँचने का मार्गदर्शन जरूर करेगी, यह मुझे विश्वास है। एक चित्रकार की छोटी सी यात्रा और उनका अपना कलात्मक दर्शन कितनी दूर तक, कितना गहरी और व्यापकता में हम सबको ले जाता है, उसकी छोटी सी मिसाल इस फिल्म के माध्यम से हमने देखी। हम सबका अत्यंत सौभाग्य है कि आज हमारे बीच स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज अपने आशीर्वचनों के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। दार्शनिक मेधा से प्रकाशित एक ऐसे अध्येता के रूप में हम उन्हें अपने बीच पाते हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को बहुत ही समग्रता में जानने समझने की चेष्टा की है। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र में आध्यात्मिक नेताओं के विभिन्न मिलेनियम शांति सम्मेलन को आपको संबोधित करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूरोप और एशिया सहित दुनिया भर की आपने सांस्कृतिक यात्राएं की हैं। 150 से भी अधिक किताबें आपने लिखी हैं जो कि शिक्षा और तकनीकी के विभिन्न विषयों पर एकाग्र हैं। बहुत ही आदर श्रद्धा के साथ आदरणीय परमानंद गिरि जी महाराज से निवेदन, अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। ओम। बहुत ही प्रसन्नता है जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्यों के विचारों का प्रचार करने वाली संस्थाएं हैं, उनको सम्मानित किया गया। यद्यपि इन्हें सम्मान के लिए काम नहीं कर रहे, उनकी अपनी श्रद्धा है, पर हमारा भी कर्तव्य है कि जो अच्छा काम करें उन्हें सम्मानित किया जाए। वर्तमान ये कार्यक्रम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के विचारों को विश्व में फैलाने का संकल्प लिया है। ये भी सच्चाई है कि अधिकतर पहले के तो थे, चाहे वो कोई नेता थे जो राजनीति में रह के कई जेलों में रहकर गीता पर भाष्य करते रहे, जेलों में रहकर स्थित प्रज्ञ दर्शन लिखते रहे। आज लोग बाहर रह के भी कुछ नहीं कर रहे। बधाई है शिवराज सिंह को, जिन्होंने जगत गुरु के विचारों को विश्व में फैलाने का संकल्प लिया है। भले वो आज सत्ता में नहीं है, पर राम जब सत्ता में नहीं थे तब भी कुछ काम किया था। जिन्हें करना होता है, हर समय अवसर है, तो हम इसके लिए शुभाशीष भी देते हैं और साथ देने का संकल्प भी करते हैं कि वो करेंगे तो हम साथ हैं। और रह गया वेदांत की बात, वेद के ही वचनों से हम कुछ बात कहना चाहते हैं। वेद ने कहा, उपनिषद ने, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमथम
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपास्ते। जिसको यह करके जानते हैं, उपासना करते हैं, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो मन इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन वही उपनिषद, उन्हीं के बाद जगत गुरु शंकराचार्य क्या बताते हैं? ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इनका समन्वय कैसे होगा? अभी बहुत कुछ कह चुके हो, दोहराने में टाइम लगेगा। जैसा कि हमसे पहले सोनी जी ने कह दिया है कि जो इन्होंने कह दिया है उसे मैं क्यों दोहराऊं, मेरी भी उसमें मोहर है। सच्चाई यही है कि निषेध करके ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, यदि ये नहीं चिंतन किया जाए, इसलिए ये मैं नहीं हूँ, देह मैं नहीं हूँ, इंद्रियां मैं नहीं हूँ, ये पूर्णता के प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ये अंतिम बात नहीं है। असल में उस सत्य को अनुभव करने के बाद, आत्मसात करने के बाद, आत्मैवेदम सर्वम, अहमेवेदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ। पर उसके लिए सोनी जी ने जो इशारा किया है वो बहुत खतरनाक है। एक बार मेरे एक बड़े गुरु भाई स्वतंत्रता सेनानी थे, जेलों जाते रहे, उनकी महिमा सुनते थे, देखा कभी नहीं था। नाम मैं नहीं लेता, मेरी आज भी उन पर श्रद्धा है। उन्होंने डिग्री कॉलेज खोला, बड़े बड़े विद्यालय खोले। मुझे लगता है एशिया में सबसे अधिक ज़मीन उनके विद्यालय में होगी, जो मांग मांग करके लगाई। तो मैं इसलिए उनकी याद करता हूँ कि उनका जब नाम सुना, मैं सोचूं कि जब आएंगे मैं दर्शन करूँगा। दर्शन जो आए तो वो काले काले थे, मेरा प्रणाम करने का मन ही नहीं हुआ। क्योंकि हम जब प्रशंसा सुनते हैं किसी वक्ता की ना, तो पर्सनालिटी माने देह की तरफ ध्यान जाता है, सुंदर होगा। इसीलिए आजकल वक्ता मेकअप करके जाते हैं। असल में हमारी आंतरिक महत्ता घटती जा रही है। और अभी विज्ञान की बहुत बातें थी, इस समय बहुत सावधानी की ज़रूरत है। विज्ञान सब कुछ तेज करता है। जिन्हें कल्याण चाहिए उनको ये साधन भी बहुत सुलभ हैं। हम टीवी में नहीं दे पाते थे, पैसे लगते थे, अब साधन है। अभी हमारा प्रवचन कोई चाहे लाइव सुन सकेगा। अभिप्राय है विज्ञान ने हमें सब कुछ सुविधा दे दी है। बहुत जल्दी हम बर्बाद भी हो सकते हैं, बच्चे बर्बाद होते हैं फ़ोनों के माध्यम से। विज्ञान ने सब कुछ दिया है, जो नहीं देखना चाहिए देख सकते हैं, और जो नहीं दिखता उसे भी देख सकते हैं। वेदांत कहता है जो नहीं दिखता उसे भी अनुभव किया जा सकता है। ये इसलिए विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। संत विनोबा ने एक जगह लिखा है, मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हूँ। वो कहते हैं कि ये होता है ना, विज्ञान धन राजनीति, अध्यात्म धन विज्ञान बराबर सर्वोदय। अध्यात्म और विज्ञान मिल जाए तो सर्वोदय होगा, और विज्ञान और राजनीति मिल जाए तो सर्वनाश होगा। क्योंकि विज्ञान और राजनीतिज्ञों के हाथ, इसलिए जो आणविक शक्ति आई है वो विनाश करने की ओर है, यदि हम शांति नहीं। इसलिए शांति के साथ शस्त्र चाहिए। इसीलिए पहले शस्त्र देने के उनका नेचर देखा जाता है, कैसा आदमी है। तो शस्त्र भी, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कृपाण, संत के हाथ में शस्त्र हो, दुष्ट के हाथ में नहीं। तो विज्ञान भी एक शस्त्र है जो भले लोगों के हाथ होना चाहिए, जो शांति चाहते हैं, समाज का सुधार चाहते हैं, भला चाहते हैं। और अभी सुन रहे थे, भगवान शंकराचार्य के समय पर इतना विज्ञान नहीं था, पैदल जा जा के किया। मुझे लगता है यदि आज शंकराचार्य होते तो शायद देश में एक मठ नहीं, शायद मठ ही मठ होते और सब लोग महान होते। लेकिन उस समय कितनी मेहनत करके उन्होंने काम किया है। इसलिए अभी जो बात चल रही, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहीं मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा।
तो आज उनके विचारों को पहुंचाने के लिए हमको उद्यम करना चाहिए, जैसे शिवराज सिंह जी लगे हुए हैं। ठीक है, अब तो सत्ता में नहीं है ना, तब भी लगे हुए हैं। अभिप्राय है राम का वनवास हुआ तो जंगल में जाकर भी दुष्टों से निपटना, अच्छा काम करना। और अध्यात्म का कहीं कहीं गड़बड़ भी हो सकती है। अर्जुन ने सुना, वो अच्छा व्यक्ति है, महान है, लेकिन वो युद्ध को तैयार नहीं है। भगवान ने गीता सुनाई, आपको आश्चर्य होगा, लड़ने के लिए गीता। आप जानते हो कई लोग कहते हैं लड़ना नहीं चाहिए। अब यदि अर्जुन न लड़ने का संकल्प लिए था तो भगवान ने गीता सुना के लड़ाया, ये भी ध्यान रखना। और हनुमान जी, आप जानते हो हनुमान जी का अभी सुन लिया ना, वो तो सारे हमको भी याद हैं, सोनी जी ने जो सुना दिया, शरीर और जीव और वास्तव में मैं कौन हूँ। माने वास्तव में मैं तीनों हूँ, शरीर भी हूँ, जीव भी हूँ और ब्रह्म भी हूँ। और ये सुन रहे थे ना डुअलिटी की बात, द्वैत नहीं हो तो अद्वैत कैसे देखोगे? यदि तीन अवस्थाएं नहीं हैं तो कोई साक्षी है कहाँ ढूंढोगे? अर्थात द्वैत अद्वैत का विरोधी या अद्वैत द्वैत का विरोधी नहीं है, असल में द्वैत में ही तो अद्वैत का अनुसंधान करना है। और आखिरी बात मैं कह दूं, दूसरे को टिकट मिले मुझे खुशी हो, नहीं कई बार टिकट इन्हें मिल गई तो पार्टी का आदमी हराने में लग जाता है। ये प्रैक्टिकल। और कई लोग कहते हैं हमें 20 वर्ष हो गया पार्टी की सेवा करते, हमें टिकट नहीं मिला। जैसे सेवा तुमने टिकट के लिए की थी। इसलिए भगवान का गीता का ये श्लोक याद रखना चाहिए, क्या? कामना की पूर्ति के लिए नहीं, फल की इच्छा से नहीं काम करना, और फल की इच्छा ना हो तो काम नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें कोई फल नहीं तो हम काम क्यों करें। ऐसी सोच के लोग करोड़ों हैं कि हमें चाह नहीं है तो हमें काम नहीं करना। और बहुत लोग ऐसे हैं काम तो करना है पर कोई हमारी इच्छा है इसके लिए करना। ऐसे चाहिए, भगवान ने कहा फल की इच्छा भी नहीं हो, काम भी करो और कर्म का त्याग मत करो। उदाहरण किसका दिया? भगवान ने अपना। कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी बढ़ते हो च कर्मण, फिर भी मैं काम करता हूँ। अर्थात निस्वार्थ व्यक्ति, पूर्ण काम व्यक्ति, आत्माराम व्यक्ति काम करे तो विश्व का उदय होगा और विश्व हमारे मार्गदर्शन पर चलेगा और ये भारत विश्व गुरु हो जाएगा। आज भी विश्व के लोग यहाँ आते हैं पर बहुत कुछ व्यवहारिक बातें देखकर उन्हें घृणा भी हो जाती है। जैसा कि विषय आया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। यहाँ इस देश में बलात्कार 5-7 वर्ष की बच्चियों से, ये आश्चर्य है। कामना ही है तो अंधा कर देती है। हम सुख का त्याग नहीं कर पाते। सुख की कामना का त्याग, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। जब कामना आती है तो आदमी को पागल कर देती है। और तो वैज्ञानिक हो आप लोग, मैं बता दूं, हमारे यहाँ गायें हैं। एक कोई ऐसी गाय थी हरिद्वार में, एक आया कि अब ये हीट पे आएगी पर इसको नंदी नहीं देना। 1 महीने बाद फिर आएगी, उन्हें पता है, फिर भी नंदी नहीं देना। फिर जब ऐसा हो तब। माने जानवर की व्यवस्था अपन कर सकते हैं, ये मनुष्य की व्यवस्था कैसे करें? आखिर मनुष्य को स्वयं, जानवर का मालिक बाहर है। यदि पेड़ में जल्दी बौर आ गए तो माली का काम है बौर तोड़ दे, नहीं पेड़ कमजोर रहेगा। पेड़ के लिए तो माली है, ये मनुष्य का माली कौन बनेगा? इसलिए मनुष्य का माली बनने के लिए शंकराचार्य जैसे दिग्गज चिंतक विद्वानों की बातें, आत्मा रामता, स्थित प्रज्ञता, आत्मा राम हो जाओ, आत्मा में आनंदित हो, अपने सुख के लिए नहीं। जो हमारे यहाँ भिक्षुक होते थे, जैन हैं, सनातनी हैं, भिक्षुक लेके खाते हैं, पर हम भीख लेके खाने वाले को भिखारी नहीं बोलते। रोटी मांग के खा ले, कपड़ा मांग के पहन ले, शमशान से उठा के कपड़े पहन लेने वाले संत
हाँ, महान थे। हमारे एक संत जिनके नेत्र नहीं थे, प्रज्ञा चक्षु, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, महान चिंतक, मानव की मांग, सत्संग, सुधा, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, जिनके नेत्र नहीं थे। अरे नेत्र हमें संसार में भटका रहे हैं। तो इंद्रियों पर, यही हमारी शत्रु हैं, यही हमारी, विज्ञान ही नहीं, विज्ञान ही शत्रु मित्र नहीं है, इंद्रियां भी हमारी शत्रु हैं, इंद्रियां भी हमारी मित्र हैं। जीती हुई इंद्रियां ये हमारी मित्र हैं, और यदि ये हावी हो गई तो फिर ये हमारी शत्रु हैं। इसलिए इन्हीं इंद्रियों के द्वारा इनको रथ बनाकर हम ऊंचाइयों तक भी जा सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा गिरकर जेलों में भी जा सकते हैं। ये चुनाव करने का अवसर है, ये कार्यक्रम। चुनाव करो, और चुनाव मनुष्य कर सकता है। इलेक्शन में भी गधे घोड़े वोट नहीं देते। जीवन के अच्छे बनाने का निर्णय भी जानवर नहीं कर सकता। मुझे क्या बनना है, औरंगजेब बनना है कि महात्मा बुद्ध बनना है कि भगवान शंकराचार्य बनना है, भगवान राम कृष्ण बनना है, क्या बनना है, ये चुनाव हम कर सकते हैं, और हम इसी जीवन में लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अभी इतना ही कहकर समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति। धन्य वे हम आदरणीय स्वामी जी परमानंद गिरी जी महाराज। इससे पहले कि अब हम इस सत्र के बिल्कुल अंतिम छोर पर आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करें आदरणीय संतोष सहगुरा जी को, आपको बता दें कि हमारे तकनीकी सत्र आज के जो निर्धारित हैं वो इसके तुरंत बाद भोजन अवकाश होगा। उसके बाद इसी सभागृह में हम जीवन दर्शन और मठामनाय परंपरा पर एकाग्र सत्र पर यहाँ सब इकट्ठा होंगे। अध्यक्षता करेंगे स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, और मुख्य वक्ता के रूप में होंगे डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी। उसके बाद सत्र होगा शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत और सामाजिक सांस्कृतिक अंतरण। अध्यक्षता करेंगे स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज, और मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री मुकुल कानिटकर जी और डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा हमारे बीच होंगे। हमारा तीसरा तकनीकी सत्र शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का पूर्व और पश्चात दार्शनिक विकास। अध्यक्षता करेंगे इस सत्र की स्वामी अद्वैयानंद सरस्वती जी, और मुख्य वक्ता बतौर हमारे बीच होंगे स्वामी मनोहर गोस्वामी, प्रोफेसर वी कुटुंब शास्त्री और डॉक्टर मणि द्रविड़ शास्त्री। शाम की सभा आपको मालूम है कि देश की विख्यात शास्त्रीय गायिका श्रीमती सुधा रघुरमन आचार्य शंकर जी की कुछ रचनाओं की सांगीतिक प्रस्तुति देंगी। आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित हैं श्री संतोष सहगुरा जी। धन्यवाद उपाध्याय जी। देश के महान दानवीर, शिक्षाविद, विधि अनन्य ज्ञाता डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के इस विश्वविद्यालय में अद्वैत वेदांत पर आधारित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज एवं प्रमुख अखंड परमधाम, हम आपका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कोटिशा आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से समूची सृष्टि को अद्वैत सिद्धांत एवं विचारधारा को एक सूत्र में बांधने का मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे अतिथि परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, समन्वयक हिंदू सभा आचार्य सभा राजकोट, हम आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। इस वैचारिक समागम में आपके द्वारा दिए गए दिव्य उद्बोधन से सारा सदन गदगद है, आपका आभार। मंचासीन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं यशस्वी लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आज इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्रीमन सुरेश सोनी जी, देश के अग्र चिंतक एवं विचारक का विश्वविद्यालय में सारस्वत उद्बोधन एवं पधारने के लिए धन्यवाद एवं वंदन। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय श्रीमंत डॉक्टर सतपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का इस विशाल समागम में अपना अमूल्य समय देने के लिए। हमारे इस विराट विश्वविद्यालय के मुखिया एवं शिक्षाविद माननीय प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी, कुलपति महोदय का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आज उन्होंने अपने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सूत्रधार एवं आयोजक की बहुत ही सफल भूमिका का निर्वहन किया है, इसके लिए एक बार पुनः उनका कोटिशा आभार। अद्वैत उत्सव के संयोजक आदरणीय प्रोफेसर अंबिका दास शर्मा जी को का हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में इस विशाल सम्मेलन की व्यू रचना रची और जिसके लिए अद्भुत पल हम सब के लिए प्रस्तुत किया, उसके लिए उन्हें कोटिशा आभार। हम आभारी हैं परम पूज्य श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी
एवं परम पूज्य श्री विष्णु शेखर भारती जी कि उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में सागर शहर से पधारे हमारे माननीय सांसद श्री राज बहादुर सिंह जी, आदरणीय दादा श्री लक्ष्मी नारायण यादव साहब, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी, यहाँ पे उपस्थित सम्माननीय अन्य सांसदगण, विधायकगण, माननीय श्री अभय दरे जी महापौर, शहर से पधारे अधिकारीगण, समाजसेवी, शिक्षाविद, प्रबुद्ध नागरिक, सम्मेलन उपस्थित देश विदेश से पधारे समस्त प्रतिभागीगण, सोशल साइंटिस्ट, रिसर्चर, चिंतक, दार्शनिक, इसके साथ गेस्ट स्पीकर, विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थियों, आप सभी का आभार। मीडिया जगत से पधारे हुए समस्त हमारे पत्रकार बंधुओं का भी आभार। यहाँ पे उपस्थित आदरणीय समस्त नारी शक्ति को कोटिशः प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित हैं कई हम विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय, माननीय डॉक्टर UK मिश्रा जी VC रायपुर, डॉक्टर नारायण कबीरपंथी साहब हमारे पूर्व विधायक, महर्षि योगी के कुलपति महोदय डॉक्टर GS पांडे जी पूर्व VC उज्जैन विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी पूर्व कुलपति संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, डॉक्टर मुकुल कानेटिकर साहब, डॉक्टर V शंकरानंद जी, प्रोफेसर रत्नम जी, माननीय श्रीमती पारुल साहू जी, माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी पूर्व सांसद महोदय, माननीय प्रोफेसर DC शर्मा जी वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, माननीय डॉक्टर मुकेश तिवारी जी VC शहडोल यूनिवर्सिटी, माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, माननीय प्रोफेसर संतोष चौबे साहब आईसेक्ट के वाइस चांसलर। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में श्री गुलाब कोठारी साहब का भी वक्तव्य रहेगा, उनका भी हम यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये बता दें कि हमारे बीच में आज किसी कारणवश विदेश में होने के कारण माननीय जो कुलाधिपति महोदय हैं प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी जी, वो यहाँ नहीं उपस्थित हो चुके हैं। उन्होंने अपना एक बधाई संदेश प्रेषित किया है, उसके लिए भी उनको ढेर सारा आभार। इसके अलावा यहाँ पे अद्वैत सम्मान से सम्मानित किए जाने वाली 4 संस्थाएँ जिसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं: चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन, आर्ष विद्या गुरुकुलम, आद्य शारदा श्रृंगेरी शारदा पीठ, अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मिशन, आदिशंकर ब्रह्मा विद्यापीठ सोनाग्राम, एवं हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री एवं जाने माने पर्सनालिटी श्रीमान शिवराज सिंह जी एवं श्रीमान वासुदेव कामत जी का भी बहुत बहुत आभार यहाँ पधारने के लिए। और यहाँ पे उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में ये निवेदन करता हूँ कि बाहर भोजन के लिए व्यवस्था की गई है, आप सभी लोग भोजन ग्रहण करें और इसके बाद जो सत्र यहाँ आयोजित किए गए हैं उसमें तन्मयता के साथ आप लोग अपनी सहभागिता व्यक्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय भारत, ओम नमो नारायण।